میری یہ کہانی محض اس وجہ سے کہی ہے کہ تو اس دغا باز کا کہنا نہ سن، ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ بادشاہ بولا، تو سچ کہتی ہے، میں ہرگز ان سے ملنے نہ جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو لوگ بادشاہ کی ڈیوڑی پر آئے اور دن کا بڑا حصہ وہاں بیٹھے بیٹھے گزار دیا۔ جب انہیں نا امیدی ہو گئی تو پھر وہ شماس کے پاس گئے اور کہا، دیکھو، یہ جاہل لڑکا ہمارے ساتھ جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ ملک اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور اس کی جگہ دوسرا بادشاہ ہو، تاکہ ہمارا انتظام اچھا ہو سکے۔ لیکن ایک بار اس کے پاس جا اور اسے سمجھا دے کہ محض اس کے باپ کے احسانات اور اعت و پیما کی وجہ سے ہم اس کے خلاف بلوا کرنے اور اس کا ملک چھین لینے سے درگزر کر رہے ہیں۔ کل ہم سب لوگ اپنے اپنے ہتھیار لے کر جمع ہوں گے اور قلعے کا دروازہ توڑ ڈالیں گے۔ اگر وہ نکلا اور جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کیا تو خیر، ورنہ ہم گھس کر اسے قتل کر ڈالیں گے اور کسی دوسرے کو بادشاہ بنا لیں گے۔ وزیر شماس نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا، تو اپنی شافتوں اور کھیل کود میں مشغول ہو کر یہ کیا بلا اپنے سر لایا ہے؟ نہ معلوم کون تجھے اس پر ابھار رہا ہے۔ اگر تو خود اپنے اوپر یہ ظلم ڈھا رہا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیری سمجھ پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کسی نے تجھے علم کے بدلے جہالت میں، وفا کے عوض بے وفائی میں اور نرم دلی چڑھا کر سنگ دلی میں ڈال دیا ہے۔ ورنہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں 3 بار نصیحت کروں اور تو نہ مانے، تجھے نیک مشورہ دوں اور تو اس کے خلاف کرے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے تیری ریت اس پر تولی کھڑی ہے کہ تیرے محل میں گھس کر تجھے قتل کر دے اور کسی اور کو بادشاہ بنا لے۔ اگر تجھے دنیا میں اور رہنا اور بادشاہت کرنا ہے تو ہوش میں آ، ملک کا انتظام اور لوگوں پر اپنی قوت کا اظہار کر، معذرت کر کے انہیں سمجھا بجھا، ورنہ وہ تیرے ہاتھ سے ملک چھین لیں گے اور دوسرے کے سپرد کر دیں گے، کیونکہ وہ نافرمانی اور مخالفت پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ تو کم سن ہے، لہو لعاب اور شہوت پرستی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ پتھر کتنے ہی زمانے تک کیوں نہ پانی میں پڑے رہے، جب تو انہیں نکال کر ایک دوسرے پر مارے گا تو ان میں سے آگ نکلے گی۔ تیری مثل اب لومڑی اور بھیڑیے کی سی ہونے والی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا؟ شماس نے کہا، ایک بار چند لومڑیاں کچھ کھانے کی چیز ڈھونڈ رہی تھی کہ انہیں ایک مرا ہوا اونٹ ملا۔ وہ کہنے لگی، اب ہمیں بہت دنوں کے لیے کھانا مل گیا ہے، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے لگے اور مضبوط کمزور کو نہ دبا لے۔ ایسا ہوا تو کمزور ہلاک ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک حاکم تلاش کریں جو ہمارا حساب بکھرا کر دیا کرے، تاکہ پھر طاقتور کی کمزور کے خلاف کچھ نہ چلے۔ ان میں یہی صلاح مشورہ ہو رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آ پہنچا۔ لومڑیاں آپس میں کہنے لگی کہ اگر سب کی رائے ہو تو اس بھیڑیے کو اپنا حاکم بنا لیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ پہلے بھی اس کا باپ ہمارا بادشاہ تھا اور ہم خدا سے امید رکھیں کہ وہ ہمارے درمیان انصاف کرے۔ یہ کہہ کر لومڑیاں بھیڑیے کے پاس آ گئی اور کہا کہ ہم تجھے اپنا حاکم بناتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت کے موافق دے، تاکہ ہم میں سے زبردست کمزور پر ظلم نہ کرے اور ہم آپس میں کٹ نہ مرے۔ بھیڑیے نے منظور کر لیا اور اس دن کے لیے ان میں کافی حصہ تقسیم کر دیا۔ لیکن دوسرے دن وہ اپنے دل میں کہنے لگا، اگر میں اس اونٹ کو اسی طرح ان کمزوروں میں بانٹتا رہا تو مجھے بھی اتنا ہی ملے گا جتنا کہ انہوں نے میرے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر میں اکیلا اسے کھاؤں گا تو وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے ایسے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں۔ میں کیوں نہ خود قبضہ کر لوں؟ غالباً خدا نے اپنی طرف سے یہ نعمت میرے لیے بھیج دی ہے، پھر میں ان کا احسان کیوں اٹھاؤں؟ بہتر ہے کہ میں اونٹ کو اپنے لیے مخصوص کر لوں اور انہیں کچھ نہ دوں۔ صبح ہوئی تو لومڑیاں دستور کے مطابق بھیڑے کے پاس اپنا روزینہ لینے گئی۔ بھیڑے نے جواب دیا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ باقی نہیں۔ لومڑیاں پریشان ہو کر وہاں سے چل دی اور کہنے لگی، خدا نے ہمیں بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ یہ خبیث خائن خدا سے بھی نہیں ڈرتا اور ہم اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ ایک لومڑی بولی، آج وہ بہت بھوکا ہوگا، اسے پیٹ بھر کر کھا لینے دو اور کل ہم پھر اس کے پاس چلیں۔ دوسرے دن لومڑیوں نے اس کے پاس جا کر کہا، اے ابو سرحان، ہم نے تو تجھے اس لیے اپنے اوپر حاکم مقرر کیا تھا کہ تو ہم میں سے ہر ایک کو اس کی روزی دے، طاقتور کے مقابلے میں کمزور کا انصاف کرے۔ جب یہ اونٹ ختم ہو جائے تو ہمارے لیے اور کھانا تلاش کرے اور ہم ہمیشہ کے لیے تیری فرما بردار اور رعایا رہیں۔ ہم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، بھوکے ہیں، ہمارا کھانا دے اور باقی کا جو تیرا جی چاہے کر۔ بھیڑیے نے کچھ جواب نہ دیا، بلکہ اس کا دل اور زیادہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے اسے بہت منایا، لیکن نہ ماننا تھا نہ مانا۔ اب لومڑیوں کی یہ رائے ہوئی کہ ہم شیر کے پاس چل کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے اونٹ اس کے حوالے کر دے۔ اگر اس نے ہمیں اس میں سے کچھ دے دیا تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ اس خبیث سے تو وہی زیادہ مستحق ہے۔ چنانچہ شیر کے پاس جا کر انہوں نے بھیڑیے کا سارا قصہ سنایا اور کہا، ہم تیرے غلام ہیں اور تجھ سے مدد لینے آئے ہیں۔
तू उस भेड़िए से हमारी जान छुड़ा, हम हमेशा तेरी फर्मा बरदार रहेंगे। लोमड़ियों की ये बात सुनकर शेर की हमीयत जोश में आ गई और वो उनके साथ हो लिया। जो ही भेड़िए की नजर शेर पर पड़ी वो भागा, लेकिन शेर उसके पीछे दौड़ा, पकड़कर उसकी तिक्का बोटी कर डाली और लोमड़ियों का शिकार उनके हवाले कर दिया। उससे हमें ये पता चलता है कि बादशाह को रैयत के मामले में पहलूतही नहीं करनी चाहिए। लिहाजा मेरी नसीहत मान ले और जो वादा तूने उनके साथ किया है उसे पूरा कर। तेरे बाप ने मरने से पहले तुझे ये वसीयत की थी कि नसीहत मानियो। यही आखिरी बात है जो मैं तुझसे कहना चाहता था, और बस। बादशाह बोला, मैं तेरी बात तस्लीम करता हूँ। खुदा ने चाहा तो कल उनसे मिलूंगा। शमास ने बाहर आकर लोगों से कहा कि बादशाह ने मेरी नसीहत मान ली है और वादा किया है कि कल बाहर आकर तुमसे मिलेगा। और बादशाह की बीवी ने जो शमास को ये कहते हुए सुना और उसे यकीन आ गया कि अब बादशाह जरूर अपनी रियाया से मिलने जाएगा, तो फौरन उसके पास दौड़ी हुई गई और कहा, कितनी ताज्जुब की बात है कि तू अपने गुलामों की हुक्म की तामील करता है। ये वजीर तो तेरे गुलाम हैं, फिर तूने उन्हें क्यों इतना सर पर चढ़ा रखा है? वो समझते हैं गोया उन्हीं ने तुझे बादशाहत और हुकूमत दे रखी है और वही तेरे साथ बख्शिश करते हैं। हालांकि वो तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुझे उनकी खुशामद करनी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए कि तेरी खुशामद करे और तेरा हुक्म माने। आखिर तू क्यों इतना उनके रौब में आ गया है? अगर तेरा दिल फौलाद की तरह नहीं तो तू बादशाह होने के काबिल नहीं। तेरी नरमी की वजह से उनकी ये हिम्मत हो गई है कि वो तुझे हुक्म देते हैं, हालांकि उन्हें चाहिए कि वो तेरी फर्मा बरदारी करे और तेरा हुक्म माने। मेरी बात मान और इनका कहना न सुन, वरना तेरी मिसाल भी चरवाहे और चोर की सी हो जाएगी। बादशाह ने पूछा, वो क्या किस्सा है? चरवाहे और चोर की कहानी। औरत ने कहा, एक चरवाहा भेड़ों का गल्ला जंगल में चराया और उनकी खूब हिफाजत किया करता था। एक रात एक चोर भेड़ें चुराने आया, लेकिन उसने देखा कि चरवाहा उनकी हिफाजत कर रहा है। रात भर वो घात में लगा रहा, आखिर एक भेड़ भी न चुरा सका। जब कोई तदबीर न चली तो उसने जंगल में जाकर एक शेर मारा और उसकी खाल उतार कर उसमें भूस भर दिया और उसे एक ऐसी ऊंची जगह लाकर रखा कि चरवाहा देख सके और यकीन कर सके कि वो शेर है। उसके बाद चोर ने चरवाहे के पास आकर कहा, शेर ने मुझे तेरे पास भेजा है ताकि तू उसके रात के खाने के लिए भेड़ें दे। चरवाहे ने पूछा, शेर कहाँ है? चोर बोला, आंख उठाकर देख, वो खड़ा है। चरवाहे ने आंख उठाकर देखा, समझा कि वाकई शेर है। उसे देखकर सहम गया, इतना डरा कि चोर से कहने लगा, भाई जो तेरा जी चाहे ले जा, मुझे कोई उज़र नहीं। चोर जितनी भेड़ें चाहता था ले गया। चरवाहे को खौफजदा देखकर उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आए दिन आता और शेर के नाम से उसे डरा कर जितनी भेड़ें चाहता ले जाता, यहाँ तक कि वो अपने गले का बड़ा हिस्सा खो बैठा। ए बादशाह, मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है कि कहीं तेरे अमरा घमंड में आकर तेरे सर न चढ़ जाए। उनकी इन हरकतों से तो मर जाना बेहतर है। बादशाह ने उसका कहना मान लिया और कहा, मैं उनकी हरगिज न सुनूंगा और न जाकर उनसे मिलूंगा। सुबह को सारे वजीर, अमीर और शरीफ हथियार लेकर बादशाह के महल पर पहुंचे ताकि उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दें और दूसरा बादशाह मुंतखब करें। उन्होंने दरबान से कहा, दरवाजा खोल, लेकिन उसने न खोला। उन्होंने आग मंगवाई कि दरवाजे को जलाकर अंदर घुस जाए। दरबान दौड़ा हुआ बादशाह के पास गया और कहा, लोग दरवाजे पर इकट्ठा हो गए हैं। मुझसे उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए कहा था, मैंने इनकार कर दिया, तो उन्होंने आग मंगवाई है कि दरवाजों में आग लगाकर अंदर घुस आए और तुझे मार डालें। अब तू क्या हुक्म देता है? बादशाह ने अपने दिल में कहा कि बुरी मुसीबत में फंसा और औरत को बुलाकर कहा, शमास ने जो कुछ कहा था सब ठीक निकला। खास और आम सब लोग चाहते हैं कि मुझे और तुम सबको कत्ल कर दे। जब दरबार ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने आग मंगवाई है कि महल में आग लगा दे और हम उसके अंदर जल जाए। अब तू क्या मशवरा देती है? औरत ने कहा, डर नहीं, आजकल का ज़माना ऐसा है कि जलील लोग अपने बादशाह के सर पर चढ़कर नाचते हैं। बादशाह ने पूछा, अच्छा तेरी राय में अब हमें क्या करना चाहिए? औरत ने कहा, अपने सर पर पट्टी बांध ले, बीमार बनकर लेट जा और वजीर शमास को बुला के वो तेरी हालत आकर देख जाए। जब वो आए तो उससे कहियो कि मैं आज बाहर निकलकर लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन बीमारी की वजह से मजबूर हूँ। तू जाकर लोगों से मेरी हालत बयान कर दे और कह दे कि मैं कल बाहर आकर उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी कर दूंगा। उससे उनका गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा। सुबह हो तो अपने बाप के 10 मोटे ताजे गुलामों को बुलवाइयो, जिन पर तुझे भरोसा हो, जो तेरा हुक्म माने और तेरा रात फाश ना करे। उन्हें अपने पास खड़ा करके हुक्म दीजिए कि वो महज एक एक को तेरे पास अंदर आने की इजाज़त दे। जब एक शख्स दाखिल हो तो उनसे कहियो कि इसे पकड़ कर कत्ल कर दो। अगर वो इस बात पर राज़ी हो जाएं
तो सुबह सवेरे अपनी कुर्सी दरबार में लाकर दरवाज़ा खुलवा दीजिए। वो देखेंगे कि तूने दरवाज़ा खुलवा दिया है तो कुछ कुछ निडर होकर तेरे पास आएंगे। तू उन्हें एक एक करके अंदर बुलाइयो जैसा कि मैंने कहा है, और अपना मतलब पूरा कर लीजिए। लेकिन इब्तिदा शमास से कीजिए, क्योंकि वो बड़ा वजीर है और बड़ा सरदार, उसी को सबसे पहले कत्ल कीजिए। फिर दूसरों को जिनके मुतलिक तुझे गुमान हो कि वो तेरी मुखालफत करेंगे या जिनकी कुव्वत से तुझे अंदेशा हो, जब तू ऐसा कर चुकेगा फिर किसी का जोर तुझ पर न चलेगा। तू उनसे बेगम हो जाएगा, मुल्क तेरे लिए साफ हो जाएगा और तू जो चाहेगा कर सकेगा। इस तदबीर से ज्यादा और कोई तदबीर मुफीद नहीं। बादशाह ने कहा तेरी राय बिल्कुल ठीक है और मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगा। उसके बाद उसने एक पट्टी मंगवा कर बांध दी और शम्मास को अंदर बुलाकर कहा, ए शम्मास, तू जानता है कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और तेरी राय मानता हूँ। तुझे अपने भाई बल्कि बाप के बराबर मानता हूँ। तूने मुझसे कहा है कि मैं निकल कर अपनी रियाया से मिलूँ। मुझे यकीन है कि तेरी राय ठीक है और मैंने कल इरादा कर लिया था कि आज निकलूँगा, लेकिन मैं बीमार पड़ गया, उठकर बैठ भी नहीं सकता। मुझे खबर मिली है कि मुल्क वाले मुझसे नाराज़ हैं और मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक करना चाहते हैं जो उनकी शान के खिलाफ है। उन्हें मालूम नहीं कि मैं बीमारी में मुब्तला हूँ। तू जाकर उनसे मेरा हाल बयान कर दे और मेरी तरफ से मौजरत कर। मैं उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ और जो वो पसंद करें वही करूँगा। तू मेरी तरफ से उन्हें समझा दे। तू मेरा भी मशीर है और मेरे बाप का भी। तू ही मशीर था। तू लोगों में हमेशा समझौता कराता रहा है। अगर खुदा को मंजूर है तो मैं कल बाहर निकल कर उनसे मिलूंगा और उम्मीद है कि अपनी नेक नीति और खैर ख्वाही की बदौलत मैं आज रात ही तंदुरुस्त हो जाऊंगा। शमास ने खुदा के आगे सजदा किया, बादशाह को दुआ दी, उसके हाथ चूमे और खुश खुश बाहर निकलकर लोगों से माजरा बयान कर दिया। उन्हें उनके इरादे से रोका, बादशाह के न निकलने की वजह सुनाई और कहा उसने कल निकलने और तुम्हारे कहने पर अमल करने का वादा किया है। यह सुनकर सब लोग अपने अपने घर चले गए। उधर बादशाह ने अपने बाप के गुलामों में से 10 मस्टंडों को छांट कर बुलवाया जो बड़े मजबूत और बहादुर थे। उनसे कहा, तुम्हें मालूम है कि मेरा बाप तुम्हारी कितनी इज्जत और तौकीर करता था। अब मैं तुम्हारा दर्जा और ज्यादा करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं तुमसे पूछता हूँ कि आया मेरा साथ दोगे और मेरे भेद को पोशीदा रखोगे? अगर तुम्हें मंजूर है तो जितना तुम एहसान चाहते हो उससे ज्यादा करूँगा। 10 ने एक जुबान होकर कहा, जो कुछ हमारे आका का हुक्म होगा उसकी हम तामील करेंगे, तेरा कहना मानेंगे क्योंकि तू हमारा मालिक है। उसने कहा, खुदा तुम्हें नेक बदला दे। अब सुनो मैं क्यों तुम पर एहसान करना चाहता हूँ। तुम्हें मालूम है कि मेरा बाप अपनी रैयत पर कितना एहसान और इकराम किया करता था। उसने उनके साथ अहद व पैमा बांधा था कि वो मेरा साथ देंगे और मेरी नाफरमानी न करेंगे। फिर तुमने ये भी देख लिया कि कल वो मुझे कत्ल करने पर तुले हुए थे। उनकी एहसान फरामोशी के बदले में जंगजू होंगे। वो तेरे मुल्क में घुसकर तेरी दौलत लूट लेंगे, मर्दों को मार डालेंगे और औरतों को गिरफ्तार कर लाएंगे। उनका सरदार मैं अपने वजीर बदी को बनाऊंगा और उसे हुक्म दूंगा कि वो तेरे शहर का सख्त मुहासरा करे यहाँ तक कि वो फतह हो जाए। इस कासिद गुलाम को मैंने हुक्म दिया है कि वो 3 दिन से ज्यादा तेरे पास न ठहरे। अगर तूने मेरा हुक्म मान लिया तो तू बच जाएगा, वरना मैं तेरे ऊपर चढ़ाई कर दूंगा। जब बादशाह ने यह खत पढ़ा तो उसके हाथ पांव फूल गए, अकल जाती रही, अपनी तबाही का यकीन हो गया। अब कोई ऐसा न था जिससे वो मशूरा ले या मदद चाहे। उठकर अपनी बीवी के पास गया। उसका चेहरा उतरा हुआ देखकर बीवी ने पूछा, ए बादशाह, खैर तो है? उसने जवाब दिया, आज मैं बादशाह नहीं हूँ बल्कि एक बादशाह का गुलाम। यह कहकर उसने खत खोला और पढ़कर बीवी को सुना दिया। यह सुनते ही वो रोने पीटने और अपने कपड़े फाड़ने लगी। बादशाह ने कहा, इस मुश्किल वक्त में कोई राय दो और तदबीर निकालो। उसने जवाब दिया, लड़ाइयों के बारे में औरतों के पास कोई तदबीर नहीं। औरतों में न कुव्वत होती है न उनकी कोई राय। ऐसी बातों में तो मर्द कुव्वत वाले, राय और तदबीर वाले हैं। बादशाह ने अपनी बीवी की ये बातें सुनी तो उसे बड़ी पशीमानी हुई, अफसोस और तकलीफ हुई कि उसने अपने मुसाहिबों और वजीर के साथ क्या बुरा सलूक किया। बादशाह को बड़ा अफसोस हुआ। कहने लगा, काश ऐसी बुरी खबर आने से पहले मैं मर गया होता। और अपनी बीवियों से बोला, तुम्हारे साथ मेरा वही हाल हुआ जो तीतर का कछुओं के साथ। उन्होंने कहा, उनकी कहानी क्या है, वो कैसे हुआ? तीतर और कछुओं की कहानी। बादशाह ने कहा, किसी जजीरे में चंद कछुए रहते थे। उस जजीरे में बहुत से दरख्त, फल और नहरें थी। एक बार एक तीतर उड़ता हुआ उधर से गुजरा। गर्मी और थकन के मारे उस जजीरे में उतर पड़ा और वहीं ठहर गया जहां कछुए रहते थे। जब कछुए चरते चुगते अपनी जगह आए और उनकी नजर तीतर पर पड़ी तो उसकी खूबसूरती पर रीझ गए।
खुदा की पाकी बयान करने लगे। उन्हें तीतर से बड़ी मोहब्बत हो गई। वो उसे देख देख कर खुश होते और एक दूसरे से कहते कि ये सबसे खूबसूरत जानवर है, उसके साथ नरमी और तवाज़े बरतनी चाहिए। तीतर को भी उनसे मोहब्बत हो गई और अगरचे वो सुबह को उड़कर जहां चाहता जाता, लेकिन शाम के वक्त लौटकर कछुओं के पास आ जाता। एक मुद्दत तक यही होता रहा, लेकिन कछुओं का तीतर के चले जाने से दिल घबराता। वे एक दूसरे से कहने लगे कि हमें इस तीतर से मोहब्बत हो गई है, वो हमारा दोस्त बन गया है, उसकी जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या तदबीर हो कि वो दिन रात हमारे साथ रहा करे। अब तो वो उड़ जाता, दिन भर गायब रहता है और सिर्फ रात के वक्त हम उसे देखते हैं। एक कछुए ने कहा, भाइयों ठहरो, मैं एक ऐसी तरकीब करता हूँ कि वो हमसे दम भर भी जुदा ना हो। सब बोले, अगर तूने ऐसा कर दिया तो हम सब तेरे गुलाम बनकर रहेंगे। जब तीतर चर चुग कर लौटा और कछुओं के बीच में आकर बैठा तो उस कछुए ने आगे बढ़कर उसे दुआ दी, उसकी सलामती पर मुबारकबाद दी और कहा, है मेरे आका, खुदा ने तेरी मोहब्बत हमारे दिल में, हमारी मोहब्बत तेरे दिल में डाल दी है और इस बयाबा में तुझे हमारा गमख्वार बनाया है। दोस्तों का बेहतरीन वक्त वो है जो साथ गुजरे। जुदाई बड़ी बुरी चीज है। तू सुबह को चला जाता है और शाम से पहले लौट कर नहीं आता, इससे हमें बड़ी परेशानी रहती है। तीतर बोला, मुझे भी तुमसे बड़ी मोहब्बत है, तुम्हारा बहुत इश्तियाक रहता है और तुम्हारी जुदाई मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन मेरे पास इसका इलाज नहीं, क्योंकि मैं परिंदा हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ नहीं ठहर सकता। यह मेरी फितरत से बईद है। परिंदा महज रात के वक्त सोने के लिए एक जगह ठहर सकता है, सुबह होते ही उड़ जाता है और जहाँ उसका दिल लगता है चरता चुगता है। कछुए ने कहा, तू सच कहता है, लेकिन परिंदों को अक्सर आराम नहीं मिलता, क्योंकि जो कुछ उन्हें मिलता है उससे चौगनी उनको मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। हालांकि मकसद आराम और राहत है। खुदा ने हमारे और तेरे दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दी है, इसलिए हम डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरा कोई दुश्मन तुझे मार डाले और फिर हमें तेरा दीदार नसीब न हो। तीतर बोला, तू सच कहता है, लेकिन फिर मेरे बारे में तेरी क्या राय है? कछुए ने कहा, मेरी राय यह है कि तू अपने पर नोच डाल, जिनसे तू इतना तेज उड़ सकता है। आराम से हमारे साथ रहे और इस घने और मेवेदार जंगल में हमारा खाना खा, हमारा पानी पी। इस तरह से हम सब इस जरखेज जगह में इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरे की सोहबत का लुत्फ उठाएंगे। तीतर ने उसकी बात मान ली। आराम उठाने के ख्याल से एक एक करके अपने सारे पर नोच डाले और कछुओं के साथ रहने लगा। वो इसी हालत में रहते थे कि एक न्योला उधर से गुजरा। गौर से देखने पर उसे मालूम हुआ कि तीतर के पर नुचे हुए हैं और वो उड़ नहीं सकता। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और अपने दिल में कहने लगा, इस तीतर के पर नहीं, मगर है मोटा ताजा, और पास जाकर उसे पकड़ लिया। तीतर चिल्लाने और कछुओं से मदद मांगने लगा, लेकिन मदद देना तो दरकिनार, वो उसे नेवले के पंजे में देखकर और दूर हट गए। एक दूसरे से चिमट गए और ये देखकर न्योला उसे तकलीफ पहुंचा रहा है। रोते रोते उनकी आवाज बंद हो गई। तीतर ने उनसे कहा, सिवाय रोने के तुम और कुछ भी नहीं कर सकते। वो बोले, भाई न्योले के आगे हमारी कुछ नहीं चलती। जब तीतर अपनी जान से हाथ धो बैठा तो कछुओं से कहने लगा, जुर्म तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बातों में आकर पर नोच डाले जिनसे मैं उड़ सकता था। ए और तो मैं भी तुम्हें लानत मलामत नहीं करता, बल्कि करदनी गवेश आमदनी पेश। कसूर मेरा है। मैं ये भूल गया कि तुम्हारी ही वजह से हमारे बाप गुनाह में मुब्तला हुए और जन्नत से निकाले गए, और ये बात भी मेरे ख्याल से बिल्कुल उतर गई कि हर बुराई की जड़ तुम ही हो। तुम्हारा कहना मानकर मैंने अपने वजीरों और सरदारों को कत्ल कर दिया, जो मुझे हर बात में मशवरा देते थे और मेरी इज्जत और कुव्वत का सबब थे। आज उनकी जगह मेरे पास कोई नहीं, न कोई ऐसा दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सके, और मैं मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका हूँ। बादशाह अपने आप को लानत मलामत करने लगा और कहा कि अगर खुदा ने मेरे लिए कोई ऐसा शख्स न भेज दिया जो अपनी साहिब राय से मुझे ठीक रास्ते पर चलाए, तो मैं तबाह हो जाऊंगा। यह कहकर वो अपनी ख्वाबगाह में गया और अपने वज़रा और हुक्मा पर नोहा करने लगा और कहा, काश ये अजीमुल शान लोग एक पहर ही के लिए मेरे पास आ जाते, ताकि मैं उनसे माफ़ी मांगता, उन्हें एक नज़र देख लेता, उनके सामने अपना दुखड़ा रोता और उनसे कहता कि तुम्हारे बाद मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। दिन भर वो उसी सोच में डूबा रहा। जब रात हुई तो उसने अपनी पोशाक उतारकर फटे पुराने कपड़े पहने और भेस बदलकर शहर में गश्त लगाने लगा कि शायद कोई ऐसी बात उसके कान में पड़ जाए जिससे उसका गम गलत हो। वो शहर के गली कोचों में फिर रहा था कि उसकी नज़र दो लड़कों पर पड़ी जो एक दीवार से टेक लगाए बैठे हुए थे। दोनों कमसिन थे, दोनों 12-12 बरस के होंगे। बादशाह उनके करीब गया ताकि उनकी बातें सुन सके। बादशाह ने सुना एक लड़का दूसरे से कह रहा है कि भाई सुन,
कल रात मेरे बाप ने मुझसे पूछा, खेत वक्त से पहले क्यों सूख गए हैं। दूसरा बोला, तू जानता है कि इस आफत की क्या वजह है। उसने जवाब दिया, नहीं। अगर तू जानता हो तो बता। दूसरे ने कहा, मेरे बाप के एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि हमारे बादशाह ने अपने वजीरों और अमीरों को महज औरतों की मोहब्बत में आकर बेगुनाह कत्ल कर दिया है, क्योंकि वजीरों ने उसे इन बातों से मना किया था जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, मगर वो न माना और अपनी औरतों के कहने पर उन्हें कत्ल कर दिया। हत्ता कि मेरे बाप शमास को भी, जो उसका वजीर था और उससे पहले उसके बाप का वजीर भी रह चुका था। वो उसका मशीर था, लेकिन देख कि खुदा उसका बदला किस तरह लेता है। पहले लड़के ने कहा, उनके मर जाने के बाद अब खुदा बादशाह के साथ क्या करेगा। दूसरे लड़के ने जवाब दिया कि हिंद अक्सा के बादशाह ने हमारे बादशाह की तौहीन की है। एक खत में उसे खूब झाड़ा है और लिखा है कि मेरे लिए बीच समंदर में एक महल बनवा, और अगर तू न बनवाएगा तो मैं 12 रिसाले भेजूंगा जिनमें 1-1 लाख जंगजू होंगे, और उस लश्कर का सरदार मेरा वजीर बदी होगा। वो तेरा मुल्क छीन देगा, तेरे मर्दों को कत्ल कर देगा और तेरी औरतों को गिरफ्तार कर लाएगा। हिंद अक्सा के एलची को जो खत लेकर आया है, हमारे बादशाह ने 3 रोज तक ठहरने के लिए कहा है। वो बादशाह बड़ा जबरदस्त कुवत वाला है और उसके मुल्क की आबादी बहुत बड़ी है। अगर हमारे बादशाह ने किसी तदबीर से उसे रोक न दिया तो बर्बाद हो जाएगा, और जब हमारा बादशाह हलाक हो जाएगा तो वो बादशाह हमारी रोजी छीन लेगा, हमारे मर्दों को मार डालेगा और हमारी औरतों को पकड़ ले जाएगा। बादशाह ने उन दोनों की ये गुफ्तगू सुनी तो वो और ज्यादा घबराया। अपने दिल में कहने लगा कि ये लड़का बड़ा हकीम मालूम होता है, क्योंकि जो खत हिंद अक्सा के बादशाह के पास से आया है वो मेरे पास है। उसका भेद मैंने अब तक किसी और से नहीं कहा। फिर इस लड़के को इसकी क्यों कर खबर हो गई। ये कहकर बादशाह उसके पास गया और नरमी से कहने लगा, ए प्यारे लड़के, हमारे बादशाह के बारे में तू क्या कह रहा है। उसने वाकई बड़ा बुरा किया कि अपने वजीरों और अमीरों को कत्ल कर दिया। सचमुच इससे उसे और उसकी रैयत को बड़ा नुकसान पहुंचा है, और जो कुछ तू कहता है बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटा, यह तो बता कि तुझे कैसे मालूम हुआ कि हिंद अक्सा के बादशाह ने उसे इस मजमून का खत लिखा है। लड़के ने जवाब दिया कि बुजुर्गों के कौल के मुताबिक खुदा पर कोई बात पोशीदा नहीं, और इंसानों में रूहानियत होती है जिससे उन्हें पोशीदा भेद मालूम हो जाते हैं। बादशाह ने कहा, बेटा तू सच कहता है। अच्छा अब ये बता कि कोई तदबीर हो सकती है जिससे ये बला उसके और उसकी रैयत के सर से टल जाए। लड़के ने कहा, हाँ, अगर बादशाह मुझे बुलाए और पूछे कि किस तदबीर से उसका दुश्मन दूर हो सकता है तो मैं उसे बता दूंगा। बादशाह ने कहा, कौन जाकर बादशाह को इसकी खबर दे सकता है ताकि वो तेरे पास किसी को भेजकर तुझे बुलाए। लड़के ने कहा, मैंने सुना है कि वो दानिशमंदों की तलाश में है। अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं उसके पास जाकर वो तदबीर बताऊंगा जिससे उसे फायदा पहुंचे और उसके सर से ये बला टल जाए। अगर इस मुश्किल काम में उसने देर लगाई, औरतों के साथ लहू लाभ में मशगूल हो गया और मैं खुद उसके पास गया, तो उन लोगों की तरह वो मुझे भी मरवा डालेगा और उसकी मुलाकात मेरी हलाकत का बायस होगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे नासमझ ख्याल करेंगे और मैं इस मिसाल का मुस्तक बन जाऊंगा। जिस आलिम का इल्म उसकी अकल से ज्यादा हो वो अपने जहल में मारा जाएगा। बादशाह ने लड़के की बातें सुनी तो उसे यकीन आ गया कि वो बड़ा अक्लमंद और फाजिल है। उसकी और उसकी रैयत की निजात उसी के हाथ हो सकती है। उसने लड़के से पूछा, तू कहाँ रहता है और तेरा घर कहाँ है। लड़के ने कहा, यह दीवार मेरे घर के साथ मिली हुई है। बादशाह ने उस मकाम को खूब पहचान लिया और लड़के से रुखसत होकर खुश खुश अपने महल को चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपना लिबास पहना, खाना पीना मंगवाया और कह दिया कि औरतें उसके पास ना आए। खाने पीने के बाद उसने खुदा का शुक्र अदा किया, उससे निजात और मदद की दुआ मांगी और जो हरकत उसने अपने उलमा और रूसा के साथ की थी उसकी माफ़ी चाही। खुदा के आगे सच्ची तौबा करके रोज़ा, नमाज और खैरात का हतमी वादा किया। फिर उसने अपने खास गुलाम को बुलाकर लड़के के मकान का पता दिया और कहा कि उसे नरमी के साथ बुला ला। गुलाम ने लड़के के पास जाकर कहा कि बादशाह तुझे इनाम देने के लिए बुला रहा है। वो तुझसे कुछ पूछेगा और तुझे खैरियत के साथ तेरे घर भिजवा देगा। लड़के ने पूछा, बादशाह किस लिए मुझे बुलाता है। गुलाम ने जवाब दिया, कुछ पूछने के लिए। लड़के ने कहा, बादशाह का हुक्म 1000 बार सर आंखों पर। लड़का वहां पहुंचा तो पहले खुदा के आगे सजदा किया, फिर बादशाह को सलाम करके उसे दुआ दी। बादशाह ने सलाम का जवाब दिया और बैठ जाने को कहा। लड़का बैठ गया तो बादशाह ने पूछा, कल तुझसे किसने बातें की थी। उसी ने जो इस वक्त बातें कर रहा है। बादशाह बोला, प्यारे तू सच कहता है। उसके बाद बादशाह ने अपने पहलू में कुर्सी डलवाकर उसे बिठाया, खाना मंगवाया और दोनों बातचीत करने लगे। बादशाह ने लड़के से कहा, ए वजीरजादे, तूने कल मुझसे चंद बातें की थी,
मन जुमला उनके ये कि तेरे पास हिंद अक्सा के बादशाह की चाल का तोड़ है, बता वो क्या तदबीर है कि मैं उसकी बुराई से बच जाऊं और तुझे अपना वजीर बना लूं, हर मामले में तेरी राय पर चला करूं और तेरी बड़ी तनख्वाह मुकर्रर कर दूं। लड़के ने कहा, तेरी तनख्वाह तुझे मुबारक हो। मशूरा और राय अपनी औरतों से लिया कर, जिनके कहने पर तूने मेरे बाप शम्मास और दूसरे वजीरों को कत्ल करवा दिया है। ये सुनकर बादशाह पशीमा हो गया और एक आह भरकर कहा, प्यारे बेटे कि शम्मास सचमुच तेरा बाप था। लड़का बोला, शम्मास सचमुच मेरा बाप और मैं वाकई उसका बेटा हूँ। ये सुनकर बादशाह ने सर नीचा कर दिया, उसके आंसू डुबडुबा आए। वो खुदा से माफी का दरख्वास्त गुजार हुआ। उसकी वजह मेरी जहालत और औरतों की बुरी राय थी। उनकी चाल बेढब होती है, लेकिन मैं तुझसे माफी की दरख्वास्त करता हूँ। तुझे तेरे बाप का ओहदा बल्कि उससे भी बड़ा रुतबा देता हूँ, और जब ये बला टल जाएगी तो तुझे सोने का तोक पहनाऊंगा, सबसे ज्यादा मोअज़्ज़िज़ सवारी पर सवार करूंगा और ढंडोरा पिटवा दूंगा कि ये मोअज़्ज़िज़ जवान बादशाह के बाद दूसरी कुर्सी का मालिक है। और जो कुछ तूने औरतों के बारे में कहा है तो मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। अब बता कि तू क्या तदबीर बताना चाहता है ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। लड़के ने जवाब दिया, पहले वादा कर तू मेरी राय के खिलाफ ना करेगा, और जिस चीज से मैं डरता हूँ उससे मुझे अमान मिलेगी। बादशाह ने कहा, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर वादा करता हूँ कि मैं तेरी बात न टालूंगा। तू मेरा मशीर रहेगा, जो तू कहेगा मैं करूंगा, और जो कुछ मैं कहता हूँ उसका गवाह खुदा है। यह सुनकर लड़के का दिल खुश हो गया, उसे बात करने की हिम्मत पड़ी। उसने कहा, ए बादशाह, तरकीब यह है जो मोहलत तूने एलची को दे रखी है, उसके बाद जब वो जवाब लेने आए तो एक दिन के लिए उसे और टाल दीजिए। उस पर वो ये एतराज करेगा कि उसके बादशाह ने उसे इतनी ही मोहलत दी है और तुझसे जिद करेगा, मगर तू अपनी बात पर अड़ा रही हो। वो नाराज होकर तेरे पास से चला जाएगा और शहर में जाकर लोगों के सामने खफा होगा और कहेगा, ए शहर वालों, मैं हिंद अक्सा के बादशाह का कासिद हूँ। वो इतना ताकतवर और इरादे का पक्का है कि उससे लोहा भी नरम हो जाए। उसने मुझे एलची बनाकर यहाँ भेजा है और ठहरने की मियाद मुकर्रर कर दी है, और मुझसे कहा है कि अगर तू मुकर्ररा मियाद तक वापस न आया तो मैं तुझे सजा दूंगा। जब मैंने यहाँ आकर इस शहर के बादशाह को खत दिया तो उसने उसे पढ़कर 3 दिन की मोहलत मांगी। आज 3 दिन गुजर चुके और मैं जवाब लेने गया तो उसने 1 दिन की मोहलत चाही, लेकिन अब मैं ज्यादा ठहर नहीं सकता, इसलिए अपने आका हिंद अक्सा के बादशाह के पास वापस जा रहा हूँ और उससे सारा माजरा बयान करूंगा। तुम मेरे और उसके दरमियान गवाह रहना। जब वो इस किस्म की बातें करेगा तो उसकी खबर तुझे पहुंचेगी। उस वक्त तू उसे बुलवाइयो और नरमी से बात कीजियो और कहियो कि तू अपनी जान के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ा है, कि हमारी रैयत के आगे हमें बुरा भला कहता है। इसकी सजा तो यह है कि मैं फौरन तुझे कत्ल कर दूं, लेकिन बुजुर्गों का कौल है कि बड़े लोगों का शिवा माफ करना है। जवाब में देर करने की वजह यह नहीं कि मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं बहुत मशगूल हूँ। ये कहकर खत मंगवाइयो, उसे दोबारा पढ़ियो, पढ़कर खूब हंसियो और उससे कहियो कि इसके अलावा और कोई खत भी तेरे पास है, ताकि मैं उसका जवाब भी लिख दूँ। वो जवाब देगा कि इसके अलावा मेरे पास और कोई खत नहीं, इसका जवाब लिख दो। फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार तो उससे यही सवाल कीजिए, और जब वो इनकार करे तो उससे कहियो कि तुम्हारा बादशाह बड़ा नासमझ है, वह ऐसी बातें लिखता है जिसका नतीजा यह है कि हम अपना लश्कर लेकर उसके मुल्क पर धावा बोल दें और उसकी बादशाहत छीन लें। लेकिन इस बार हम उसकी गुस्ताखी माफ करते हैं, क्योंकि वो कम अकल और पस्त हिम्मत है। हम चाहते हैं कि इस बार उसे डरा धमका दें कि ऐसी बातें फिर न करे, वरना मैं उस पर सख्त बला नाजिल करूंगा। मैं समझता हूँ कि ना तो उसके पास कोई अक्लमंद वजीर है जो उसे मशूरा दे, न खुद उसमें इतनी समझ है कि ऐसी बेहुदा गोई से पहले किसी वजीर से मशूरा लेता। मैं भी उसके खत का जवाब वैसा ही बल्कि उससे बढ़कर दे सकता हूँ। मैं ये खत मुक्तब के किसी लड़के को दे दूंगा कि वो उसका जवाब लिख दे। ये कह के तू मुझे बुलवाइयो और कहियो कि इस खत को पढ़कर इसका जवाब दे दे। यह सुनकर बादशाह खुश हो गया, लड़के की राय को बहुत पसंद किया, उसे इनाम देकर उसके बाप का रुतबा उसे अता किया। लड़का खुश खुश रुखसत हुआ। जब 3 दिन गुजर गए तो एलची ने बादशाह के पास आकर जवाब मांगा। बादशाह ने 1 दिन के लिए और टाल दिया। इस पर एलची ने महल से निकलकर वैसी ही बातें की जैसा कि लड़के ने कहा था, और बाजार में जाकर कहा, ए शहर वालों, मैं हिंद अक्सा के बादशाह के पास से तुम्हारे बादशाह के पास खत लेकर आया था, मगर वो जवाब देने में आज कल कर रहा है। जो मियाद मेरे बादशाह ने मुकर्रर की थी वो खत्म हो चुकी, और तुम्हारे बादशाह के लिए अब कोई उज़्र बाकी नहीं रहा, लिहाजा तुम गवाह रहना। जब बादशाह को यह खबर मिली तो उसने एलची को बुलवाया और कहा, तू अपनी जान के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गया है, कि जो कुछ एक बादशाह ने दूसरे को लिखा है तो उसे कहता फिरता है। हालांकि 2 बादशाहों के दरमियान
جو باتیں ہوتی ہیں وہ راز ہیں، لہذا تو سزا کا مستحق ہے، لیکن ہم اس کا برا نہیں مانتے تاکہ تیرے بیوقوف بادشاہ کو جواب مل جائے۔ مناسب یہ ہے کہ اس خط کا جواب مکتب کا سب سے چھوٹا لڑکا دے۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بلوایا۔ لڑکے نے آ کر خدا کے آگے سجدہ کیا اور بادشاہ کو عمر دراز کی اور عزت کی ہمیشگی کی دعا دی۔ بادشاہ نے خط لڑکے کی طرف پھینک کر کہا، اسے پڑھ کر فوراً اس کا جواب لکھ دے۔ لڑکے نے خط پڑھا اور مسکرا کر بادشاہ سے کہا، بس اسی خط کے جواب دینے کے لیے تو نے مجھے بلوایا ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں۔ لڑکے نے کہا، سر آنکھوں پر، اور دوات قلم کاغذ نکال کر لکھنا شروع کیا۔ لڑکے نے دوات اور کاغذ لے کر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلامتی ہو اس پر جسے امن و امان اور خدا کی رحمت ملنے میں کامیابی ہو۔ اس کے بعد اے بادشاہ جس کا نام بڑا اور کام چھوٹے ہیں، میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ تیرا خط پہنچا۔ میں نے پڑھا، جو بیہودہ باتیں اور خرافات کا تو نے لکھا ہے میں خوب سمجھا۔ مجھے یقین آ گیا تو سخت جاہل اور بدتمیز ہے، ایسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے جو تیری طاقت سے باہر ہے۔ اگر مجھے خلق اللہ کے ساتھ محبت نہ ہوتی تو میں فوراً تجھ پر چڑھائی کر دیتا۔ تیرے ایلچی نے بازار میں جا کر تیرے خط کا مضمون ہما شما سے بیان کیا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اسے سزا دوں، لیکن میں نے رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ آگے چل کر جو کچھ تو نے وزیروں، عالموں اور حکومت کے بڑے لوگوں کے قتل کے بارے میں لکھا ہے درست ہے، لیکن ہر ایک مقتول کے بجائے میرے پاس 1000 اور ہیں جو ان سے زیادہ عالم، سمجھدار اور عقل مند ہیں، بلکہ میرے یہاں کا بچہ بچہ علم سے لبریز ہے، اور میرا ہر سپاہی تیرے رسالے کے برابر۔ اب رہی دولت، میرے یہاں واقعی سونے اور چاندی کی کانیں ہیں، ہیرے جواہرات ایسے جیسے کنکر پتھر۔ تیری یہ کیوں کر ہمت پڑی جو تو لکھتا ہے کہ میں تیرے لیے بیچ سمندر میں ایک محل بنوا دوں؟ یہ تیری حماقت کی دلیل ہے، تاہم میں بنوا بھی دوں گا بشرطے کہ تو موجوں اور ہوا کو روک تھام دے۔ تیرا یہ گمان کہ تو مجھ پر فتح پا جائے گا غلط ہے، بلکہ خدا مجھے تجھ پر فتح دے گا۔ اس بدتمیزی کا جواب تو یہ تھا کہ تجھے سزا دی جاتی۔ خیر، میں اس مرتبہ محض تجھے سمجھانے پر اکتفا کرتا ہوں، لہذا اس سال کا خراج جلد بھیج دے، ورنہ میں اپنے وزیر کے ساتھ 11 لاکھ ہاتھی سوار بھیج کر 3 برس تک تیرا محاصرہ کروں گا اور تیرا ملک چھین لوں گا، لیکن سوائے تیرے اور کسی کو قتل نہ کروں گا، اور سوائے تیری عورتوں کے اور کسی کو گرفتار نہیں کروں گا۔ یہ خط لکھ کر لڑکے نے اس کے نیچے اپنی تصویر بنا دی اور تصویر کی ایک طرف لکھ دیا، یہ خط مکتب کے سب سے چھوٹے بچے نے لکھا ہے۔ بعد ازاں اس نے خط پر مہر لگا کر بادشاہ کو دے دیا، اور بادشاہ نے ایلچی نے اسے لے کر بادشاہ کے ہاتھ چومے، خدا کا شکریہ ادا کیا، بادشاہ کی بردباری کا شکر گزار ہوا۔ آپ میرا بھائی تھا جب تک وہ سنو۔ اس نے اپنی بری عادتیں چھوڑ کر خدا کے آگے توبہ کی، عورتوں کی صحبت بالکل ترک کر کے ملک کی اصلاح کی طرف ہماتن مشغول ہو گیا۔ شماس کی جگہ اس کے بیٹے کو وزیر بنا لیا اور حکم دیا کہ 7 دن تک شہر میں چراگاں کیا جائے۔ ریت خوش ہو گئی، ان کے دل سے بادشاہ کی برائی کا ڈر نکل گیا، اور اس کے عدل و انصاف سے سب خوش ہو گئے۔ بادشاہ کو بھی دعا دی، وزیر کو بھی، جس نے بادشاہ اور ریت کا غم غلط کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، اب کیا تدبیر ہونی چاہیے؟ ملک ویسا ہی سرسبز و شاداب ہو جائے جیسا کہ اگلے روسا اور سیاست دانوں کے وقت میں تھا۔ وزیر نے کہا، اے عالیشان بادشاہ، میری رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل سے گناہوں کی جڑ کو کاٹ کر پھینک دے، کھیل کود، جور و ظلم اور عورتوں سے انہماک چھوڑ دے، کیونکہ اگر تو گناہوں کی جڑ کی طرف دوبارہ مائل ہوا تو یہ دوسری گمراہی پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ گناہوں کی جڑ کیا ہے جو مجھے کاٹ ڈالنی چاہیے؟ چھوٹی عمر اور بڑی عقل والے وزیر نے کہا، اے عالیشان بادشاہ، گناہ کی جڑ عورتوں کی محبت، ان کی طرف بیلان، ان کی رائے اور ان کی تدبیر کا قبول کرنا ہے، کیونکہ ان کی محبت صاف عقل کو گندا اور سالم طبیعتوں کو پراگندہ کر دیتی ہے۔ اگر تو غور کرے تو اس بات کو خود سمجھ سکتا ہے، میرے کہنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ خدا نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ عورتوں سے زیادہ میل جول نہ رکھنا چاہیے۔ ایک عقل مند بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا، جب تو میرے بعد بادشاہ ہو تو عورتوں سے زیادہ میل جول نہ رکھیو، ورنہ تیرا دل فاسد ہو جائے گا اور رائے گمراہ۔ ان کے زیادہ میل جول سے ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کی محبت سے رائے بگڑ جاتی ہے۔ اس کی دلیل حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہے، جنہیں خدا نے اتنا علم و حکمت اور حکومت دی تھی کہ کسی کو آج تک ملی بھی نہیں۔ ان کے باپ کی غلطی کا سبب بھی عورتیں ہی تھی۔ اے بادشاہ، ایسی مثالیں بہت سی ہیں، لیکن میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جیسی ان کی حکومت تھی کسی کی بھی نہ ہوئی، یہاں تک کہ دنیا کے تمام بادشاہ ان کے فرما بردار تھے۔ عورتوں کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور عقل تو ان میں سے
کسی میں بھی نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ عورتوں سے میل جول جتنا کم ہو سکے رکھے، بالکل انہی کا ہو کر اپنے کو تباہی میں نہ گرا لے۔ اے بادشاہ، اگر تو نے میرا کہنا مان لیا تو تیرے سب کام ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ تو ایسا پچھتائے گا کہ پھر پچھتائے کچھ نہ بنے گا۔ بادشاہ نے کہا میں نے عورتوں کی طرف رجحان تو بالکل ترک کر دیا، لیکن ان کی حرکتوں کی سزا کیا دینی چاہیے، کیونکہ تیرے باپ شماس کی موت کا باعث بھی یہی عورتیں ہیں۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہ تھا، مجھے معلوم نہیں کہ میرے عقل پر کیا پتھر پڑ گئے تھے۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا، چیخ ماری اور کہا ہائے افسوس، میرے وزیر کہاں گئے اور کہاں گئی ان کی سائے پر آئے، دوسرے وزیر اور حکومت کے بڑے بڑے لوگ کدھر گئے؟ وزیر نے کہا جرم محض عورتوں کا نہیں، ان کی مثال محض ایک خوبصورت کھلونے کی سی ہے جسے دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جو کوئی انہیں خریدنا چاہتا ہے وہ اس کے ہاتھ بک جاتے ہیں، اور جو انہیں خریدنا نہیں چاہتا اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن جرم اسی کا ہے جو خریدتا ہے، بالخصوص جب کہ وہ اس کے نقصان جانتا ہو۔ میں بھی تجھے اس سے خبردار کرتا ہوں، اور اس سے پہلے میرے باپ نے بھی تجھے خبردار کیا تھا، لیکن تو نے اس کی نصیحت نہ مانی۔ بادشاہ بولا میں گناہ کا مرتکب ہو چکا ہوں، اور میرے پاس سوا اس کے کوئی عذر نہیں کہ خدا کا یہی حکم تھا۔ وزیر نے کہا اے بادشاہ، خدا نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں قوت دی، ارادہ اور اختیار دیا۔ اگر ہم چاہیں ایک کام کریں، اگر نہ چاہیں نہ کریں۔ خدا نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم ایسا کام کریں جس میں نقصان ہو اور گناہ کے مرتکب ہوں۔ ہم اچھا کریں یا برا اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ تو بالکل سچ کہتا ہے، واقعی غلطی میری ہے کہ میں شہوتوں میں پڑا رہا۔ میں نے کئی بار اپنے آپ کو ڈرایا، اور تیرے باپ شماس نے بھی بارہا ڈرایا، لیکن میرا نفس عقل پر غالب آ گیا۔ کیا تو مجھے ان غلطیوں سے روک سکتا ہے تاکہ میری عقل نفسانی شہوتوں پر غالب آ جائے؟ وزیر نے جواب دیا ہاں، میں ایک بات بتا سکتا ہوں جس سے تو پھر ایسی غلطی نہ کرے، وہ یہ ہے کہ تو جہالت کو چھوڑ کر انصاف پسندی سے کام کرے، اپنی خواہشات کی نافرمانی اور اپنے مالک کی فرما برداری کر، اپنی عادتیں ترک کر کے اپنے عادل باپ کی عادتوں کو اپنا، خدا اور اپنی ریت کے حقوق ادا کر، اپنے دین، اپنی ریت، اپنی ذات کی حفاظت فرض جان، ہر بات کا انجام سوچ، ظلم و جور اور فساد سے دستکش ہو، عدل و انصاف اور خضوع و خشوع پر کاربند ہو، خدا کے احکام میں تعمیل سے منہ نہ موڑ، اس کی مخلوق کے ساتھ جو اس نے تیرے سپرد کی ہے مہربانی سے پیش آ، ان سے ایسا برتاؤ کر کہ وہ تجھے ہمیشہ دعا دے۔ اگر انہوں نے تجھے ہمیشہ دعا دی